Very good morning to everyone. This is the sum we will be doing today. Mr. Ram Nene held on 1/1/2013 rupees 60,000 of 12% government securities which are tax free of rupees 100 each of rupees 56,500. So this is the account of Mr. Ram Nene. He is an investor. The chapter is investment accounting. तो यहाँ पे there can be a company who is investing or there can be individual who is investing. So Mr. Ram Nene is investing and he is holding like the investment held and brought में difference है. Brought मतलब purchase, held matlab he is already having this investment with him which he may have purchased in the past, sometime in the past. So the first day, the held they have given, so which day it is? 1/1/2013. And why in the debit side? Because this 12% government securities is investment for Mr. Ram Nene. Investment means asset. Asset means always debit balance. So to balance, this is not purchase. This is what purchase हो चुका है पहले पिछले साल. This is the balance, opening balance. To balance brought down. How much units? 60,000, 12% government securities of rupees 100 each. मतलब 60,000 is the nominal value or the face value of the सिक्योरिटी. तो यूनिट कैसे निकालेंगे? 60,000 डिवाइड बाय द पर फेस वैल्यू ऑफ per share या per security, government security is 100. So 60,000 divide by 100 when you do, you get the units. But here what they have asked for the nominal value which is given. And what is the cost value? They say ये 60,000 का जो security है is bought for 56,500. Nominal value will never change, but cost value will change depending upon the market performance. So now this is done. First में हमने क्या लिखा? हमने लिखा अब how much nominal value and how much is the what you say cost. Now we have to, whenever we write anything, मतलब कोई भी हम परचेस लिखो, सेल लिखो, उसको एक और जगह में रिकॉर्ड करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. दैट इज द cost structure where we will write everything. So opening balance kitna units, as you all told, 60,000 divided by 100 to 600 units hai. Nominal value is 60,000 and cost is 56,500. Now now very important, let us read the question ahead and do the next thing what we have to do. On 1st June, they say on 1st June 2013, he purchased a further of rupees 40,000 of the security at rupees 97 come interest. Means on 1st 6, that is 1st June, additional security of 40,000 was purchased. 40,000 means one unit, if it is of 100, means 400 units kharida hai at 97 come interest. Come interest means ये 97 rupees में interest का amount included है, because company will pay the interest only on due date. But whenever we do purchase or sale from someone, we have to adjust the interest also with that person. Means if I am purchasing some securities from a पर्सन ए, उसने जितने भी मैंने सिक्योरिटी अपने पास रखा है उसका इंटरेस्ट भी मुझे देना है. एंड व्हेन आई एम डूइंग अ सेल, आई शुड गेट द इंटरेस्ट फॉर द मंथ्स आई हैव रिटेन द सिक्योरिटी विद मी. सो ऑन 31st July 2013,
50,000 security was sold at rupees 94 x interest. X interest means excluding interest. ये 94 rupees does not include the amount of interest. And 50,000 means how many unit? 50,000 divided by 100. 500 into 94 करेंगे तो we will get the sale price. And whenever you calculate the sale, you have to calculate profit or loss, because purchase is a expense but sale is a income. So sale जब भी करते हैं तो one thing that comes to our mind is profit हुआ या loss. So purchase may never that thing come to our mind. Only when we do a sale, we have to find out whether it is a profit or a loss. And on 1/12/2013, rupees 20,000 of the security was again sold. Means 1st December, one more sale is there, and this time it is come interest sale for 96. Means interest is included in this 96 rupees, and 20,000 means 200. 20,000 divided by 100 matlab 200 units. And now this is very important, which I am highlighting here. When is the interest being paid by the company? इंटरेस्ट कंपनी कब पे करने वाली है? इंटरेस्ट पे करने का साल में 2 डेट्स है. मींस द सिक्योरिटी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी के ऊपर द कंपनी where Mr. Nene has invested money will be paying interest on 2 dates, 31st March and 30th September. तो ये दोनों डेट को हमें ध्यान में रखना है. When we are passing the purchase and sale entries, don't forget about these 2 dates. 31st मार्च को भी नहीं भूलना है और 30 सितंबर को भी नहीं भूलना है, बिकॉज ये दो डेट्स को इंटरेस्ट मिलेगा, एंड इंटरेस्ट मिलना इज इनकम. you will never forget your salary date if you are working. That is very important date which you will not forget. Why? Because that the income comes in. And same way, if you have done any investment, interest rate is very important, because that day that income will come. So you cannot forget these 2 dates, 31st March and 30 September. And was, see, they say interest on the security was paid on 31st March and 30 September and was credited by the bank. Means company is paying on 31st March and 30 September. But when the money reaches your bank account, it is 31st March का 3rd April हो जाता है and 30th September का 4th October हो जाता है. So when you're क्रेडिटिंग फॉर द रिसीट ऑफ कैश, आपको इंटरेस्ट का पैसा मिल रहा है, तब आप 31st मार्च का डेट नहीं डालोगे. यू हैव टू put the date of 3rd April, because cash will be received on 3rd April. And same way when you will be putting the due date 30 सितंबर का इंटरेस्ट कलेक्ट करोगे तो डेट आपको 4th अक्टूबर डालना होगा, बिकॉज यू विल बी गेटिंग द कैश ऑन 4th अक्टूबर. Company is paying on 31st March and 30 September, but the time when money reaches your bank account, thoda time lag jata hai. The price of the security on 31st December 2013, that is on 31st December year end, they say the market price of the security, government security tax free was 96. So we have to compare whether it is a profit on valuation or loss on valuation, that we will do. And this Mr. Nene closes his books on 31st December each year. मीन्स ये जो पर्सन है वो 31st दिसंबर को अपना बुक ऑफ अकाउंट्स क्लोज करता है. तो अकॉर्डिंगली वी विल ऑल्सो हैव टू क्लोज द इन्वेस्टमेंट अकाउंट ऑन 31st December. What have we have to draw investment account in the books of Mr. Nene. Okay, so now what we have done, we have passed the opening balance, but we can see that one place is empty here, that is interest. तो interest last कब company ने pay किया? Very important, you have to always think कि इससे पहले company ने
जिसका गवर्नमेंट सिक्योरिटी मिस्टर नेने के पास है, वो कंपनी 2 डेट्स पे इंटरेस्ट पे करता है. दैट कंपनी pays the interest on 2 dates. One is 31st March and one is 30 September. Now my question is, when we are in 1st Jan, see the date is what? Opening balance का date क्या है? 1/1/2013 means 1st Jan. When we are at 1st Jan, the company ने लास्ट इंटरेस्ट कब पे किया होगा? लास्ट इंटरेस्ट जब हम जैन में हैं तो कंपनी ने लास्ट बार इंटरेस्ट कब पे किया होगा? मार्च में या सितंबर में? वी आर इन जैन, तो कंपनी ने लास्ट टाइम कितने कौन से मंथ में इंटरेस्ट पे किया होगा? इससे पहले, if when I am in 1st Jan and company is paying interest on 31st March and 30 September, तो last interest कौन से month में pay किया होगा? Which will be the last month? Can anyone say last month कब pay किया रहेगा? It is September, क्योंकि we are in it is September. How September? अभी हम जैन में हैं, तो कंपनी ने इससे पहले इंटरेस्ट 30 सितंबर को पे किया होगा. उसके बाद अब कितना मंथ का इंटरेस्ट अभी कंपनी को पे करना आउटस्टैंडिंग है? लास्ट इंटरेस्ट हैज बीन पेड इन सितंबर, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 3 मंथ्स का इंटरेस्ट इज आउटस्टैंडिंग बिकॉज द ओपनिंग बैलेंस इज ऑन विच डेट? 1/1/2013 मीन्स 1st Jan 2013 is the date. तो 1st Jan 2013 मीन्स लास्ट इंटरेस्ट सितंबर में मिला होगा, तो अभी भी कितने महीने का इंटरेस्ट मिलना बाकी है? 3 मंथ्स का. तो दैट वी हैव टू कैलकुलेट, वी हैव टू कैलकुलेट, वी हैव टू कैलकुलेट, वेट, कैलकुलेट outstanding interest, calculate outstanding interest on opening balance. Opening balance, so opening balance is 60,000. 60,000 into rate of interest question में दिया है 12%. this is 12% government security, so rate of interest जो मिलेगा will be 12% into कौन सा 3 महीना? सितंबर में लास्ट इंटरेस्ट मिला है, मीन सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर. सो कौन सा 3 महीना? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर. हाउ मच अमाउंट आर यू गेटिंग? आर यू गेटिंग 1800? 1800. सो द इंटरेस्ट इज 1800. एंड यहाँ पे फॉर यू ऑल टू अंडरस्टैंड आई एम राइटिंग द मंथ्स. कौन सा? नवंबर, अक्टूबर, नवंबर and December. These are the 3 months. इसके बाद we have to see what is the next transaction. Next is 1/6/2013, that is June. 1/6/2013 means कौन सा मंथ हो जाता है? जून को फर्दर 40,000 सिक्योरिटी हैज बीन परचेज्ड. बट जून से पहले मैंने तुम लोग को कौन सा डेट याद रखने के लिए बोला है? जून से पहले 31st March विल बी कमिंग. जून से पहले 31st March विल बी कमिंग, एंड 31st March को कंपनी विल गेट द, I mean Mr. Nene will get the interest on due date. See, next transaction given is directly of June, but June से पहले हमें 2 dates याद रखना है. एक तो 31st March and second 30 September, because these are 2 years, two period when the company will be paying interest. So working note 3 में जाएंगे. Working note 2 में we have calculated the opening interest. Now we will calculate interest on due date. So due date, which due date? Due date 31st March. Due date of 31st March. तो लास्ट कंपनी ने इंटरेस्ट दिया रहेगा सितंबर में. कंपनी पेस इंटरेस्ट ओनली इन 2 days.
वन 31 मार्च एंड अदर 30 सितंबर। तो कंपनी ने लास्ट इंटरेस्ट अभी तक दिया था सितंबर में, तो सितंबर के बाद अब मार्च में हाउ मेनी मंथ्स देखो, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, मीन्स इट इज 6 मंथली इंटरेस्ट। तो कौन से अमाउंट पे हमें इंटरेस्ट मिलेगा? हमारे पास कॉस्ट स्ट्रक्चर में कितना यूनिट्स है? 600, and interest is always paid on nominal value. So 12% interest into 6 divide by 12, you will get 3600. Are you getting this? 3600. So 3600 is the interest on due date. Now what we will do, we will go to the, when you are getting interest, it is income. and तो ये जो इनकम है हम हमेशा कहाँ दिखाएंगे? वी विल शो हियर इन द क्रेडिट साइड। क्या मिलेगा? यू विल गेट मनी, तो यहाँ लिखेंगे बाय कैश बैंक। बट सी आई हैव नॉट रिटन एनीथिंग अबाउट, I have not written anything about the date, क्योंकि 31 मार्च को इंटरेस्ट मिला है, बट कैश मिलते मिलते डेट बिकम्स 3 अप्रैल 2013। दे से कि क्या होता है, 31 मार्च को कंपनी तो इंटरेस्ट पे करती है, बट टिल यू रिसीव द कैश इट बिकम्स 3 अप्रैल। सो मैंने लिखा 3 अप्रैल, वर्किंग नोट नंबर 3, एंड हाउ मच इंटरेस्ट मिला? 3600। द इंटरेस्ट अमाउंट इज 3600। सो दिस इज ऑल्सो डन। हमने ड्यू डेट में इंटरेस्ट भी रिसीव कर लिया। नाउ वी विल हैव टू गो टू द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन विच सेज 1/6/2013। परचेस आया तो डेबिट साइड, सेल आया तो क्रेडिट साइड, बिकॉज वेन एवर यू परचेस योर इन्वेस्टमेंट विल इंक्रीज। तो 1/6/2013 को there is a purchase. Purchase means what will go out? Purchase means cash will go out, cash bank account, cash will go out, and purchase कितना किया है? 40,000। 40,000 is a nominal value, 40,000, and this is कम इंटरेस्ट। तो हमें वर्किंग नोट में जाना पड़ेगा, कॉस्ट एंड इंटरेस्ट साथ में है। See, 1800 is आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। ये तीन, जब हम 1 जैन में थे तो हमें कौन सा हमें इंटरेस्ट नहीं मिला था? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का। दिस इज आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। बट जब हम मार्च में पहुंचे तो हमें अक्टूबर से लेके मार्च तक का सारा 6 महीने का इंटरेस्ट मिल गया। दिस इज आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ड्यू टू बी रिसीव्ड। दिस इज 3600 is that interest which we have already received। जब हम जैन में पहुंचे तो कंपनी ने इंटरेस्ट 3 महीने का नहीं दिया था, पर जब हम लोग when we reached अप्रैल, सॉरी मार्च, तब हमें 6 महीने का इंटरेस्ट कंपनी से मिल गया। ये 3600 में ये 1800 भी इंक्लूडेड है। दिस इज आउटस्टैंडिंग मीन्स ड्यू, एंड ऑन ड्यू डेट जब आपको इंटरेस्ट मिलेगा तब जो बाकी था वो सारा मिल जाएगा। 3600 इज द इंटरेस्ट यू रिसीव on due date. What is due date? Due date is a date when company pays the interest to the security holders। जो भी सिक्योरिटी होल्डर्स है उनको ड्यू डेट पे ही सिर्फ कंपनी इंटरेस्ट पे करेगी। उससे पहले ओपनिंग बैलेंस में हमने ये फाइंड आउट किया कि कितने महीने का इंटरेस्ट मिलना बाकी है, हाउ मेनी मंथ्स इंटरेस्ट इज पेंडिंग, आउटस्टैंडिंग, एक्रूड। So here now what is given is the fourth one, purchase price is given. What is given? Purchase price. It is what? Come interest, परचेज प्राइस, कम इंटरेस्ट परचेज प्राइस दिया है
40,000 यूनिट्स है, मीन्स 40,000 मीन्स हाउ, सॉरी 40,000 इज द नॉमिनल वैल्यू, तो डिवाइड बाय 100 करेंगे तो इट इज 400, लेकिन व्हाट इज द प्राइस, प्राइस इज 97 कम इंटरेस्ट, प्राइस इज 97 कम इंटरेस्ट, so 400 units into 97, 400 into 97, multiply karo 400 into 97, how much are you getting, are you getting this 38,800, 38,800। नाउ ये जो 40,000 है, इसमें तो इंटरेस्ट इंक्लूडेड है, कम इंटरेस्ट मीन्स व्हाट, इंटरेस्ट इज इंक्लूडेड, सो हमें क्या करना है, इंटरेस्ट को लेस करना है। कैसे लेस करेंगे, इंटरेस्ट हमेशा नॉमिनल वैल्यू पे लेस हम करेंगे इंटरेस्ट, एंड इंटरेस्ट हमेशा नॉमिनल वैल्यू पे चार्ज होता है, तो नॉमिनल वैल्यू इज 40,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12%, सो 12 डिवाइड बाई 100। नाउ माई क्वेश्चन, हम लोग अभी जून में है, वी आर एट 1 जून, परचेज कब हो रहा है, 1 जून को, परचेस इज ऑन 1 जून, तो टेल मी लास्ट इंटरेस्ट कंपनी ने कब पे किया है, लास्ट इंटरेस्ट कंपनी ने मार्च में पे किया है या सितंबर में, कभी पे किया लास्ट इंटरेस्ट, करेक्ट पूनम, मार्च में। अभी जस्ट हमने एंट्री पास किया इंटरेस्ट का, अभी देखो मार्च में कंपनी ने इंटरेस्ट पे किया, नाउ जून, वी आर इन जून, तो व्हेन वी आर इन जून तो हम ये सवाल पूछेंगे लास्ट कंपनी ने कब इंटरेस्ट पे किया, तो लास्ट कंपनी ने अभी इंटरेस्ट पे किया है मार्च में, तो कितने महीने का आउटस्टैंडिंग है, मार्च के बाद अप्रैल, मई, शैल वी इंक्लूड जून ऑल्सो, जून को इंक्लूड कर सकते, 1 जून है तो जून महीने का भी इंटरेस्ट पेंडिंग है क्या, और इट इज ओनली अप्रैल एंड मई, it is only April and May, correct, because this is 1 June, come interest purchase price on which 1/6/2013, so it is how many month, 2 month, 2 divide by 12, it is 2 divide by 12, which is coming to 800, it is coming to 800, so how much is the cost, cost कितना रहेगा, ये 2 मंथ में इधर लिख लेती हूँ, कौन सा 2 मंथ है, अप्रैल एंड मई, 2 मंथ क्या है, अप्रैल, ये तो ज़्यादा बिगर इसमें लिखती हूँ, अप्रैल एंड मई, so the cost becomes how much, the cost becomes 38,000, the cost becomes 38,000, so हमें दोनों मिल गया यहाँ पे, working note 4, in the working note 4 we have got both the things, we have got the interest 800 and we have got the cost as 38,000, so हमारा next step क्या होता है, whenever any purchase or sale takes place we have to record that in our cost structure, so 400 units, 40,000 is the nominal value and cost is 38,000, cost is 38,000, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, it will be 1,000 and this will be 1 lakh and this will be how much, add and tell me, 56,500, 56,500 plus 38,000 will be 94,500, so done, हमारा यहाँ तक हो गया, परचेस पूरा कंप्लीट। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट एंट्री, दे से 31st जुलाई वी हैव डन अ सेल, 31st जुलाई, सितंबर को इंटरेस्ट मिलेगा, तो 31st जुलाई तो पहले है, सो व्हाट वी विल डू, सेल मीन्स क्रेडिट साइड, परचेस मीन्स डेबिट साइड में रिकॉर्ड करना होता है, तो 31st जुलाई 2013, 31st जुलाई
2013 को हमने सेल किया है. व्हाट हैव वी डन? सेल. तो सेल करेंगे तो पैसा आएगा. व्हेन वी सेल करते तो क्या होता है? मनी कम्स इन. व्हेन वी सेल मनी कम्स इन. तो हमें लिखना पड़ेगा बाई कैश बैक. व्हेन वी परचेज मनी गोस आउट. तो हमने लिखा टू कैश बैक. नाउ सेल करते वक्त ये कौन सा सेल है? हमने 50,000 यूनिट्स खरीदा. कितना? 50,000 units. Sorry, 50,000 is not the unit. 50,000 is the nominal value. units कैसे पता चलेगा? 50,000 डिवाइड बाय 100 करेंगे तो पता चलेगा it is 500. So here 50,000 nominal value. Tell me, 50,000 of the security was sold at rupees 94 x interest. मतलब interest included नहीं है. तो क्या सेल का अमाउंट क्या रहेगा? सेल वैल्यू क्या रहेगा? 50,000 में 50,000 मीन्स 500 यूनिट्स इंटू 94 करो. कितना वैल्यू आ रहा है? 500 into 94. Are you getting 47,000 everyone? 500 into 94. Correct answer, Payal. 47,000 is the cost. 47,000 is the कॉस्ट. लेकिन ये एक्स इंटरेस्ट है. इंटरेस्ट का जगह अभी भी ब्लैंक है. वेन एवर इट इज एक्स इंटरेस्ट हमें इंटरेस्ट सेपरेटली कैलकुलेट करना पड़ता है. सो वी विल गो टू द वर्किंग नोट. वी विल गो टू द वर्किंग नोट फिफ्थ वन एंड कैलकुलेट interest on X interest sale price. कितना यूनिट्स? इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन नॉमिनल वैल्यू. इंटरेस्ट हम हमेशा कभी भी इंटरेस्ट विल नेवर बी कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट वैल्यू. इंटरेस्ट क्यों हम नॉमिनल वैल्यू पे कैलकुलेट करते हैं? नॉमिनल वैल्यू मतलब फेस वैल्यू एंड दैट विल नेवर चेंज. सो वी ऑलवेज कैलकुलेट ऑन फेस वैल्यू. कॉस्ट विल डेली चेंज. तो हम इंटरेस्ट हमेशा नॉमिनल वैल्यू पे निकालते हैं. 12% इंटरेस्ट इज फिक्स्ड. एंड अगेन माय क्वेश्चन, लास्ट कंपनी ने कौन से ड्यू डेट पे इंटरेस्ट पे किया है? अब व्हेन हैज द कंपनी लास्ट पेड द इंटरेस्ट? वी कैन ऑल्सो सी कंपनी ने लास्ट इंटरेस्ट कौन से डेट में पे किया है? 31st मार्च को. सो कंपनी हैज पेड द इंटरेस्ट लास्ट ऑन मार्च. तो अभी हम लोग कौन से डेट पे है? जुलाई 31st. ये सेल कब का है? जुलाई 31st का. तो लास्ट कितना महीना इंटरेस्ट पे करके हुआ? हाउ मेनी मंथ्स? इट वाज मार्च. तो अप्रैल, मई, जून. शैल वी कंसीडर जुलाई बिकॉज ये 31st जुलाई है. तो जुलाई का भी पूरा महीने का इंटरेस्ट मिलेगा. सो इट विल बी 4 डिवाइड बाय 12. So how much amount are you getting? Just calculate the amount what you are getting. Is it 2,000? Correct, very good. It is 2,000. So हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, we will write here, this is how much? Interest is 2,000. एंड ये वर्किंग नोट नंबर कौन सा है? फिफ्थ वन है. वर्किंग नोट नंबर 5. राइट. नाउ वी विल गो टू अवर एक और चीज. व्हेनेवर इट इज अ सेल, व्हाट एल्स डू वी फाइंड आउट? जब भी सेल होता है तो एक और चीज हमें फाइंड करना पड़ता है. व्हाट इज इट? कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस on x interest sale price. So what is the x interest sale price? X interest sale price is 47,000. हमने कितने में सेल किया है?
47,000. नाउ इसमें हमें निकालना होता है व्हेनेवर इट इज अ, तो ऐसे हम थोड़ा नीचे लिख के बताती हूँ. ये क्या है इसमें, व्हाट इज दिस, दिस इज अवर नेट सेल प्रोसीड्स, मतलब कितना पैसा मिला है, वी हैव रिसीव्ड, ऐसे भी लिख सकते हो. एक्स इंटरेस्ट सेल प्राइस क्या है करके ऐसा लिखना है तो ऐसे भी लिख सकते हैं. आई एम राइटिंग इन द ब्रैकेट कि तुम लोग को जैसे लिखना है वैसे लिखो. एक्स इंटरेस्ट सेल प्राइस, एक्स इंटरेस्ट सेल प्राइस कितना है, इट इज 47,000. नाउ इसमें से हमें लेस करना है वेटेड एवरेज कॉस्ट, हमें लेस करना है वेटेड एवरेज कॉस्ट. एंड वेटेड एवरेज कॉस्ट कैसे निकालना है, वेटेड एवरेज कॉस्ट निकालने के लिए वी हैव टू गो टू द कॉस्ट स्ट्रक्चर एंड राइट लेस सेल. सेल कितना यूनिट है, 500 यूनिट है, दिस इज 50,000. डू द क्रॉस मल्टीप्लाई, डू द क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करना है, 50,000 into 94,500 divide by 1 lakh, divide by 1 lakh. How much are you getting? Divide by 1 lakh. How much answer are you getting? See how much answer you are getting. 47,250. You are getting 47,250 everyone. तो यहाँ लिखेंगे 47,250 means tell me the value was 40, cost जिसको आपने बेचा उसका कॉस्ट था 47,250 बट आपने सेल किया 47,000 में. सो इज इट अ प्रॉफिट और अ लॉस, आपने सेल किया 47,000 में बट द कॉस्ट वाज 47,250, इज इट अ प्रॉफिट और अ लॉस, आपने 47,000 में बेचा वो चीज को जिसका कॉस्ट था 47,250, चीज 47,250 का था बट यू सोल्ड फॉर 47,000, सो इट इज अ लॉस. एनीवन इज कंफ्यूज्ड हियर, लॉस के लिए इट इज अ लॉस. तो यहाँ पे मैंने लिखा द कॉस्ट वाज 47,250. लॉस है तो हम डेबिट साइड में इधर, सॉरी लॉस है तो हम यहाँ पे ही क्रेडिट में ही लिखेंगे बिकॉज यहाँ से इट विल गो टू द डेबिट साइड. तो इधर लिखेंगे लॉस है तो 37, आज सेल किया 31 जुलाई एंड द डे यहाँ लिखेंगे बाई. प्रॉफिट रहने दो लॉस रहने दो, कहाँ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. इन ब्रैकेट यू कैन राइट लॉस एंड लास्ट कॉलम में लिखेंगे डायरेक्टली क्या अमाउंट है 250. अगर प्रॉफिट होता ना तो वी विल राइट इन द डेबिट साइड, यहाँ से इट विल गो टू द क्रेडिट साइड ऑफ P&L अकाउंट. बट लॉस डेबिट इन द P&L अकाउंट, लॉस सब कौन से साइड में आता है, डेबिट साइड में. तो बाई P&L अकाउंट से टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट करके टू लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट करके इट विल कम इन द P&L अकाउंट. सो ये हो गया. इसके बाद मतलब सेल का ट्रांजैक्शन इज डन. नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल गो टू द नेक्स्ट transaction which is on 1st December. Next sale is on 1st December. But tell me 1st December में डायरेक्टली जा सकते हैं या कोई डेट हम भूल रहे. First, can we directly go to 1st December or should we pass something, some other entry in between? 1st December से पहले कौन सा डेट आता है, 1st December से पहले कौन सा डेट आता है 30 September. करेक्ट अर्शिफा, 30 September कम्स. तो 30 September को वी विल हैव टू गेट द इंटरेस्ट. तो हम 30 September के लिए हमें इंटरेस्ट ऑन ड्यू डेट का एंट्री पास करना है.
सो उसके लिए पहले लेट अस सी ना हमारे पास कितने यूनिट्स है जिसका हमें इंटरेस्ट मिलना चाहिए. 1000 था, 500 तो वी सोल्ड, तो अभी हमारे पास 1 लाख में से 50 गया. नाउ 94,500 में से 94,500 में से 47,250 गया, तो हाउ मच रिमेन्स? 47,250 रिमेन्स. सो इसके बाद ये पता लगने के बाद हम क्या करेंगे, वी विल कैलकुलेट, वी विल गो टू अवर, here I have not written, here the working note was 6. Now we have to go to the working note number 7. सो वर्किंग नोट नंबर 7 में जाएंगे, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्यू डेट. कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्यू डेट. एंड ये ड्यू डेट कौन सा है? नाउ दिस इज 30th September. सो 30th September. हमारे पास कितना यूनिट्स है? टेबल में देखो, कॉस्ट स्ट्रक्चर में हमारे पास से 50,000 यूनिट है. एंड हमारे पास जितना भी 500 यूनिट है, दैट इज 50,000 नॉमिनल वैल्यू. हमारे पास जितना भी सिक्योरिटीज होगा कंपनी, उसके ऊपर ही हमें सिर्फ इंटरेस्ट देगी. बाकी जो हमने सेल कर दिया उसके ऊपर वी विल नॉट गेट द इंटरेस्ट. तो इसलिए जब खरीदते हैं और जब बेचते हैं, हम इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली आपस में एडजस्ट करके ले लेते. तो इनटू ड्यू डेट मतलब मार्च से सितंबर काउंट करो, यू विल गेट 6 मंथ्स. मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, you will get how many? You will get 6 months. So 6 upon 12, बताओ कितना इंटरेस्ट आया on due date? What is the interest? How much are you getting? 3,000 मिल रहा है सबको. 50,000 into 12%. Yes, 3,000. So we will write, यहाँ पे इंटरेस्ट लेते हैं on 30 September. So 30 सब, लेकिन हम कब लेते हैं? देखो क्वेश्चन में बोला है 30 सितंबर है, बट कैश आते आते 4th अक्टूबर हो जाता है. कैश आते आते इट बिकम्स 4th अक्टूबर. तो यहाँ लिखेंगे बाय कैश बैंक, बाय कैश बैंक अकाउंट, and directly we will go to the interest ka column and write down 3,000 interest on due date, interest on due date. So this is also done. Now what we will do, the working note was 7. is now what we will do, question में जाएंगे, last वाला है sale. सेल इज देयर, एंड कभी सेल किया है? 1 दिसंबर में. सो विल गो एंड राइट डाउन 1 दिसंबर 2013. 1 दिसंबर 2013, अगेन इट इज अ सेल. तो बाय कैश बैंक, बाय कैश बैंक अकाउंट सेल हुआ है. सेल कितना नॉमिनल वैल्यू दिया है क्वेश्चन में? व्हाट इज द नॉमिनल वैल्यू गिवन? 20,000. एंड इसके बाद दे से 20,000 यूनिट of 20,000 of the security was again sold at 96 कम इंटरेस्ट. अब कम इंटरेस्ट है तो वर्किंग नोट में जाके दोनों अलग करना पड़ेगा. सो विल गो टू द वर्किंग नोट, and which is the working note number now? Working note number is 8. So working note number 8 में कैलकुलेशन ऑफ कम इंटरेस्ट सेल प्राइस. हाउ मच इट इज? यूनिट्स है 200, 20,000 डिवाइड बाय 100. एंड व्हाट इज द प्राइस? प्राइस इज हाउ मच? 19,200. let me check. 96 na. So we will write here 96. 200 into 96. 200 into 96 करो, और all of you getting 19,200. So ये 19,200 में
इंटरेस्ट इंक्लूडेड है, ये 19,200 में देयर इज इंटरेस्ट इंक्लूडेड, सो लेस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना है? इंटरेस्ट हमेशा नॉमिनल वैल्यू पे चार्ज करते हैं, इंटू 12%, 12/100 इंटू लास्ट इंटरेस्ट कब पे किया। अगेन माय क्वेश्चन, लास्ट इंटरेस्ट हमने कब पे किया है? कंपनी ने हमको, नेने को लास्ट इंटरेस्ट, मिस्टर नेने को लास्ट इंटरेस्ट कब मिला है? करेक्ट, सितंबर में मिला है। तो ये दिसंबर फर्स्ट है, तो सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, बट दिस इज दिसंबर फर्स्ट, तो विल वी कैलकुलेट दिसंबर? दिसंबर को गिनेंगे बिकॉज सिर्फ 2 ही महीना हुआ है, दिसंबर फर्स्ट है, सितंबर को लास्ट इंटरेस्ट मिला है, तो कौन सा 2 महीना हम यहाँ पे काउंट करेंगे? अक्टूबर एंड नवंबर, बिकॉज दिस इज दिसंबर। उस दिसंबर 31st होता ना, तो दिसंबर को भी काउंट करना पड़ता, फिर दिसंबर महीने का इंटरेस्ट भी हमें पे करना पड़ता, सेल करते, हमें सेल करते वक्त मिलता, बट नहीं। हाउ मच इट इज कमिंग? एवरीवन गेटिंग 400, एवरीवन आर गेटिंग 400, सो माइनस करो, कितना कॉस्ट कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 18,800, getting 18,800, so हमें हमें दोनों मिल गया। So we will go, we will write down here the working note number, वर्किंग नोट नंबर लिखा, इधर हमें लिखेंगे कितना इंटरेस्ट है, इट इज 400, और यहाँ लिखेंगे 18,800, 18,800 हो गया, या कुछ और बाकी है? सेल रहते और कुछ करना पड़ता है? whenever it is a sale, one more thing we have to calculate. What is it? What is it? Calculation of profit, profit or loss, calculation of profit or loss. So this is come इंटरेस्ट सेल प्राइस, कितना मिला है सेल प्राइस? 18,800, लेकिन इसमें से हमें लेस करना पड़ता है वेटेड एवरेज कॉस्ट, हमें लेस करना पड़ता है वेटेड एवरेज कॉस्ट। सो वी विल गो टू वेटेड एवरेज कॉस्ट निकालने के लिए वी विल हैव टू गो टू दिस कॉस्ट स्ट्रक्चर एंड लिखना पड़ेगा लेस सेल, लेस सेल, कितना यूनिट वी आर सेलिंग? 200, what this is? 20,000, do the cross multiply, 20,000 into 47,250, 20,000, we'll write down 20,000 into 47,250 divide by 50,000 na, divide by 50,000, so divide by 50,000, what are you getting? क्या कॉस्ट मिल रहा है? कॉस्ट मिल रहा है 18,000, 18,900, getting everyone? 18,900. Now is it a profit or a loss? हमारा कॉस्ट है 18,900, but we have sold for, correct answer everyone, we have sold for 18,800 only, तो 100 rupees का loss. You commerce student will be very good in finding out the profit loss because we relate to it. So 18,800 में सेल किया, बट कॉस्ट वॉज 18,900, ज्यादा का चीज कम में बेच दिया, सो इट इज अ लॉस। सो अगेन हमें लॉस रिकॉर्ड करना पड़ेगा। सो व्हाट वी विल डू, वी विल गो हियर, सेम डे जिस दिन सेल किया उसी दिन में हम लिखेंगे इधर बाय प्रॉफिट, बाय प्रॉफिट एंड loss account, and directly this is working note number 9,
and हम directly we will write in the last column 100 rupees. So in the bracket we will write it is loss, so that you will understand this is a loss. This is also done. Now, हाँ, दे से दैट इंटरेस्ट वाज पेड ऑन 31st मार्च, वो तो हमने ऑलरेडी नोट कर लिया है, एंड उसको पे भी 3rd अप्रैल 4th अक्टूबर भी अपने लेजर में बताया है. नाउ वन लास्ट इज रिमेनिंग, दैट इज 96 को जो दिया है मार्केट प्राइस. लेकिन उससे पहले वी विल हैव टू क्लोज द बुक्स. what we will have to do, we will have to close the books. लेकिन बुक्स क्लोज करने से पहले एक चीज बहुत इम्पॉर्टेंट है. यहाँ पे हम क्या करेंगे, सी क्लोज द बुक्स करने से, क्लोज द बुक इज 31st December. दे से 31st December. Is the font not clear? 31st December 2013. 31st December 2013. 1 minute. 31st December. कब बुक्स बंद करने बोला है क्वेश्चन में? बुक्स कब बंद करना है? When Mr. Nene closes his books, Mr. Nene अपना बुक कब क्लोज करता है? 31st December. Is it not clear? The font, tell me, are you able to see the font clearly? Mr. Nene closes his books on 31st December every year. So हम क्या करेंगे इधर? 31st December को हम यहाँ पे निकालते हैं बाई बैलेंस कैरीड डाउन. लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग वी विल हैव टू डू इज, वी विल हैव टू कैलकुलेट. जैसे हमने ओपनिंग बैलेंस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट किया है ना, जैसे हमने ओपनिंग बैलेंस में आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कैलकुलेट किया है, सेम वे हमें क्लोजिंग बैलेंस में भी आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है. सो वी विल गो हियर 10th one and calculate. इसको मैं बोलूँगी, यू कैन से आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ओनली, बट टू डिफरेंशिएट मैं इसको बोल रही हूँ कैलकुलेट एक्रूड इंटरेस्ट. एक्रूड इंटरेस्ट बोलो, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट बोलो, एक ही बात है. ऑन क्लोजिंग बैलेंस, ऑन क्लोजिंग बैलेंस. अब आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट बोलोगे तो भी चलेगा. तो व्हाट इज द क्लोजिंग बैलेंस? लेट अस सी इन द कॉस्ट स्ट्रक्चर. अभी हमारे पास क्या, व्हाट अमाउंट यहाँ पे क्या मिला? यहाँ पे क्या मिला हमें? 18,000, 19,000, सॉरी 18,900 ना, 18,900. ये लेस करके बताओ कितना हुआ है? दिस इज 300, this is 30,000, and this is how much? 47,250. 47,250 minus 18,900, it is 28,350. okay, correct. so now हमें कितने पे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट मिलेगा? आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट हमेशा नॉमिनल वैल्यू पे निकलता है. सो 30,000 इंटू 12% इंटू, टेल मी लास्ट इंटरेस्ट कंपनी ने कब पे किया? When has the company paid the interest last time? कौन सा ड्यू डेट? तब हम दिसंबर में हैं, तो कंपनी ने लास्ट इंटरेस्ट कब पे किया था? देखो, लास्ट इंटरेस्ट कंपनी ने कब पे किया था? इंटरेस्ट कब पे किया था? कैश बैंक इंटरेस्ट कब पे किया था? देखो, लास्ट इंटरेस्ट यहाँ पे किया था कभी. व्हेन इज द डेट? लास्ट इंटरेस्ट पे करने का डेट क्या है? सितंबर. तो टेल मी, नाउ वी आर एट दिसंबर, 31st दिसंबर. तो कितना महीने का आउटस्टैंडिंग है? सितंबर में लास्ट पे किया था, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कितना महीने का आउटस्टैंडिंग है? इट इज आउटस्टैंडिंग फॉर अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, 3 months. सो कितना अमाउंट आ रहा है चेक करो. हाउ मच अमाउंट आर यू गेटिंग आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट का? 30,000
into 12% into 3 divide by 12, you're getting 900 everyone. So ये 900 is the outstanding interest. तो मैं यहाँ पे interest के जगह पे I will write 900. एंड अब क्या करना है, अब ये अकाउंट को बंद करना है, ये अकाउंट को वी हैव टू क्लोज. तो पहले देखो डेबिट साइड में किधर कितना अमाउंट है, 60 एंड 40 कितना होता है, 1 लाख. इधर भी सेम लिखना पड़ेगा बिकॉज जितना खरीदा है उसमें से ही आप बेचोगे. हमेशा डेबिट साइड ही हैवी रहेगा इन्वेस्टमेंट अकाउंट का. आपके पास जितना है आप उतने में ही सेल करोगे बराबर. आप नेगेटिव नहीं बेच सकते हो. आपके पास जितना सिक्योरिटी है आप उतना मैक्सिमम सेल कर सकते हो या उससे कम. आप उससे जितना आपके पास सिक्योरिटी है उससे ज्यादा सेल नहीं कर सकते हो. तो हमेशा यू विल सी दैट योर डेबिट साइड विल बी, हमेशा डेबिट साइड ऑफ इन्वेस्टमेंट अकाउंट ही ज्यादा रहेगा. तो यहाँ पे डेबिट साइड का दिस कॉस्ट कॉलम का टोटल निकालो, 56,500 प्लस 38,000 इट इज कमिंग 94,500. यहाँ पे लिखेंगे 94,500 और यहाँ पे भी लिखेंगे 94,500. नाउ व्हाट वी विल डू इज, नाउ हमें इसको बैलेंस करना है. सबसे पहले लेट अस बैलेंस द नॉमिनल वैल्यू. 1 लाख में से 50,000 और 20,000 माइनस किया तो कितना बचा, दिस विल कम टू 30,000. और ये कॉस्ट का कॉलम लिखने से पहले हम क्या करेंगे, जो लास्ट स्टेप बचा है ना मार्केट वैल्यू, वो कर लेते हैं. व्हाट इज द मार्केट वैल्यू, व्हाट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट, इट इज 96 rupees. Market value of the investment is 96 rupees. Let us calculate the profit or loss on valuation. वर्किंग नोट नंबर 11 देखते हैं. कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन वैल्यूएशन ऑन एट क्लोजिंग डेट. तो हमारे पास कितना यूनिट्स है, 300 यूनिट्स है जिसका मार्केट में वैल्यू बता रहे 96. तो मल्टीप्लाई करो. पहले मार्केट वैल्यू देखते हैं. मार्केट वैल्यू इज 96 फॉर 300 यूनिट्स. मतलब ये कितना है, 28,800. and what is the cost value of our security, कॉस्ट वैल्यू ऑफ अवर सिक्योरिटी जब हम देखेंगे हमारा बैलेंस शीट, सॉरी हमारा कॉस्ट स्ट्रक्चर, इट इज 28,350. इट इज 28, हमने कॉस्ट स्ट्रक्चर देखा, इट इज 28,350. 28,350. अब बताओ मार्केट वैल्यू ज्यादा है या कॉस्ट वैल्यू ज्यादा है, व्हाट इज मोर. कॉस्ट वैल्यू कहाँ से मिला, कॉस्ट स्ट्रक्चर देख के मिला. कि हमारा लास्ट में व्हाट इज द वैल्यू, कॉस्ट वैल्यू ऑफ अवर सिक्योरिटी, इट इज 28,350. व्हाट इज मोर, मार्केट में हमारा वैल्यू ज्यादा है, मीन्स इट is what, it is profit as the market value of security, is the market value of security is more, its profit on valuation. प्रॉफिट है कितना रुपीस का, ऑफ ₹450. कैसे मिला, डिफरेंस निकाला दोनों का. बट हम प्रॉफिट को कभी भी रिकॉर्ड नहीं करते. प्रॉफिट को हम
कभी भी रिकॉर्ड नहीं करते जब तक हाथ में ना आए। हमने सेल नहीं किया हमारे सिक्योरिटीज को 28,800 हाथ में आने के लिए। दिस इज जस्ट अ वैल्यूएशन। बट अगर लॉस होता, उल्टा होता, मार्केट वैल्यू होता 28,350 एंड कॉस्ट वैल्यू 28,800, अगर लॉस होता तो हमें रिकॉर्ड करना पड़ता। बट दिस इज प्रॉफिट, सो नो नीड टू रिकॉर्ड, जस्ट टैली दिस साइड। एंड अब हम लोग टैली करेंगे ना, तो हमें यहाँ पे क्या अमाउंट मिलेगा मैं पहले ही बोल देती हूँ। इट विल बी 28,350। जरा देखो, इसको टैली करके देखो। 47,000 प्लस 250 प्लस 18,800 प्लस 100, 94,500 से माइनस करो, आपको आंसर मिलेगा। यू विल गेट द आंसर 28,350। जस्ट चेक, जरा बैलेंस करके देखो ये आंसर आ रहा है क्या। विद दिस द सम इज डन, विद दिस द सम इज डन। सी वन लास्ट थिंग इज रिमेनिंग। इंटरेस्ट कॉलम को क्लोज नहीं किया है, इंटरेस्ट कॉलम को क्लोज करो। 3,600 प्लस 2,000 प्लस 3,000 प्लस 400 plus 900, this is coming to 9,900। सेम हम यहाँ पे भी लिखेंगे 9,900 एंड यहाँ पे इन द मिडल कॉलम वी विल राइट, माइनस करो। 9,900 में माइनस करने के लिए क्या है, 1,800 एंड 800, तो हमें आंसर आता है 7,300। इसको हम क्लोज करेंगे 31 दिसंबर 2013। इसको बोलेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दिस इज अवर बैलेंस, दिस इज अवर बैलेंस। पीएनएल अकाउंट का जो भी इंटरेस्ट का जो भी बैलेंस होगा वो पीएनएल अकाउंट में जाएगा। सेल में भी प्रॉफिट होने दो, लॉस होने दो, इट विल गो टू पीएनएल अकाउंट। विद दिस द सम इज फाइनली ओवर।